Hello friends, welcome to my channel. So today's video is going to be all about the IT interview tips or tricks or maybe some hacks which I'll be discussing here. So these all the presentation slides which I have created here, they are purely based on my experience. अभी तक जो भी मैंने 8 to 10 इंटरव्यूज़ क्लियर किए हैं उसमें मैंने ये चीज़ें अप्लाई करी हैं एंड आई गॉट द रिजल्ट्स. सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद यू गाइज. और ये आपको मटेरियल कहीं पर भी नहीं मिलेगा. दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड इफ़ यू अप्लाई दीज थिंग्स प्रोबेबली यू विल बी सक्सीडिंग इन योर इंटरव्यू एज वेल. तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. इसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड. सो I will be making more videos on these interview tips and tricks going forward. So make sure that you like, comment, share and subscribe my channel for these updates, and do not forget to press the bell icon for notifications. So let's move on to the next slide. First thing in any interview, IT interview, you will be asked to introduce yourself, which is a very basic question or the first step in the interview. So when you are going to answer this question or when you are going to introduce yourself, make sure that while you are giving your introduction you include below things which I have mentioned or highlighted on this slide. The first thing is your name. First you have to tell your name. Then the second point will be your highest qualification, so your latest educational qualification. Okay. And the third point will be your total experience, and then you may include your relevant experience as well here, because sometimes what happens कि आपका total experience तो 5 years है let's say, लेकिन उसमें से जो relevant experience है उस job के लिए वो सिर्फ 3 years का है. So make sure that you tell it beforehand कि मेरा total experience इतना है, उसमें से relevant experience इतना है. Then move on to your skill sets. Tell about your technology stack और आपने किन चीज़ों पे काम किया है, include that. The last point will be your hobby. So at least try to tell about one of your hobbies and explain like what you do in your free time. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा. आपको इंट्रोडक्शन में बहुत सारी पर्सनल चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है, बिकॉज इंटरव्यूअर इज़ नॉट वेरी कीन टू लिसन अबाउट योर पर्सनल स्टफ. सो मेक श्योर दैट कीप इट कॉन्साइज एंड टेल ओनली द रिलेवेंट थिंग्स. तो यू आर क्लियर ऑन द फर्स्ट पार्ट कि आपको क्या चीज़ें इंट्रोडक्शन में बोलनी है. Now let's move on to the next slide. Okay, so the next point which is very obvious will be asked is आपका recent project. आपने लास्ट कंपनी में या अपनी जिस करंट कंपनी में आप हो उसमें आपका लेटेस्ट कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो, तो उसको एक्सप्लेन करना है आपको कि उस प्रोजेक्ट में आपको एंड टू एंड एक्सप्लेनेशन करना है. तो इस केस में मैं ये फॉलो करता हूँ कि जब भी मैं इंटरव्यू देता हूँ तो अगर वो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है प्रोजेक्ट का तो मैं बेसिकली स्क्रीन शेयर करता हूँ. सो यू ऑल्सो मेक श्योर दैट यू डू सम विजुअल रिप्रेजेंटेशन. कुछ आप डायग्राम्स बनाओ ताकि इंटरव्यूअर को ईजी हो समझने में, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स पीपल जस्ट टेल इट इन थ्योरेटिकल वे which kinds of confuses the interviewer and he kind of doesn't get the exact picture of your project and then he is confused. तो आप ये कोशिश करो कि आप जो आपका फ्रंट एंड है आपके एप्लीकेशन में, जो आपके बैक एंड है, जो DB है, जो क्लाउड सर्विसेज हैं, वो कैसे कनेक्टेड हैं आपस में, वो डॉट्स आप कनेक्ट करने की कोशिश करो जब भी आप एक्सप्लेनेशन करो प्रोजेक्ट का. उसके बाद आप प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजीज़ को हाईलाइट करो कि इस प्रोजेक्ट में ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, वेदर इट्स C#, APIs, वेब एप्लीकेशंस, Amazon Cloud, Azure Cloud और whatever technologies are being used, आप उनको highlight करो. Then the third point will be that you have to discuss about your contribution in the project, कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या किया है, आपने कौन कौन से पार्ट्स को टच किया है उस एप्लीकेशन में. So you have to mention very clearly that these are the things which I have worked on and contributed in this project. Okay. Now the last point will be, they may ask you like what business value does this project bring. So you have to explain like, okay, this project is solving this business problem, this is helping the customer in this way. So ये आपको include करना है. Are you clear? Are you with me on these points? अगर आप इस तरह एक्सप्लेन करोगे तो इंटरव्यूअर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका. ही विल बी इम्प्रेस्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड.
Okay. Now, in continuation to the last slide which we discussed, आपके प्रोजेक्ट लैंडस्केप के बारे में अगर वो पूछता है तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी आईटी प्रोजेक्ट होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, उसमें 5 थिंग्स होती हैं मेजरली. वन इज़ योर फ्रंट एंड, वन इज़ बैक एंड, थर्ड इज़ डीबी, द फोर्थ वन इज़ क्लाउड और मे बी सम एक्सटर्नल सर्विसेज और सिस्टम्स. The fifth part is testing of that application, which frameworks and all you are using for testing your application or supporting your application. So ये 5 चीज़ें होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में. तो आपको जब लैंडस्केप के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन करना है प्रोजेक्ट लैंडस्केप के बारे में, सो मेक श्योर दैट यू टच ऑल दीज 5 पॉइंट्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, इतना होने के बाद में आई थिंक द इंटरव्यूअर विल मूव ऑन टू द टेक्निकल पार्ट. तो ये आपका जो होगा ये मिड पार्ट होगा आपके इंटरव्यू का. इसमें आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आपका जिस भी आप प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें जो भी टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी वो आपसे क्वेश्चंस पुटअप करेगा इस पार्ट में, इस सेक्शन में. तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं या कुछ हिंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट करी हैं इस स्लाइड में. मेक श्योर कि आप उन चीज़ों को फॉलो करें. तो कई बार आपसे कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाएंगी और यू विल बी आस्क्ड समथिंग विच यू डोंट नो, राइट, यू हैव नॉट वर्कड ऑन दैट. सो सम पीपल जस्ट से दैट नो आई डोंट नो द आंसर. नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. आपको क्या करना है कि आपको कभी भी डायरेक्ट नो नहीं बोलना है किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए. इंस्टेड आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कुछ एक रेलेवेंट आंसर देना है कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई थिंक दैट दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इन दिस वे. ओके, आई हैव नॉट वर्क बट एटलीस्ट आई कैन प्रोवाइड माई इनपुट्स बेस्ड ऑन माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. ओके, तो इससे क्या होगा कि इंप्रेशन होगा कि इस बंदे के पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं. ही हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छा है. ही कैन थिंक अबाउट द सिस्टम्स, राइट. It's not, the interviewer is not very keen for you to know that you have worked on everything in your project. This will never happen, right? आप सब चीज़ पे काम नहीं करोगे, but at least you will be able to provide your inputs कि ये कैसे solve हो सकता है problem, right? So as I have mentioned in the second point कि interviewer जो है वो आपके problem solving skills देख रहा है, right? Because half an hour या 1 hour interview में आपको कोई पूरी तरीके से आपका technical judge नहीं कर सकता, right? Now your answer should be very convincing. They should be very clear and short. कई बार क्या होता है कि हम इंटरव्यू में बहुत एम्बिगुअस आंसर देते हैं. उससे क्या होता है कि कंफ्यूजिंग आंसर्स होते हैं. हम इंटरव्यूअर के ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं होता. ही इज़ नॉट एबल टू गेट व्हाट यू आर सेइंग. यू मे बी वेरी स्ट्रांग टेक्निकली बट आप इंटरव्यू में ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, राइट. सो मेक श्योर दैट योर आंसर्स आर कन्विंसिंग, दे आर वेरी क्लियर. ओके, नाउ द इंटरव्यूअर मे आस्क यू to write a piece of code, or he may give you a problem and he wants you to write some piece of code or logic, but lot of times what happens is that you don't remember the syntax always, right? आप कुछ syntax में गलतियाँ करोगे, so do not worry about like making mistakes in the syntax, rather you focus on writing the logic or pseudo code, right? कि ये steps में ये problem solve होगी, this is the pseudo code and he will be asking you to write it on notepad or some online compilers. So there you don't have to worry about the syntax because the interviewer is also not very keen to know like you have mucked up the syntax or no, he is looking just for the logic, like are you able to solve this problem, that's it. Anyways, in the editors which you will be using while doing the practical implementations in the project, it will be like Visual Studio Code or it will have some intelligence which will give you the syntax hints, right? So you don't have to worry about focusing on the syntax in interview. And last point, as we have already discussed, कि interviewer is not expecting you to work on that you have worked on everything, right, which he or she asks. He or she may ask some questions which are purely based on the requirements in the particular project for which he is hiring, right? वो जिस चीज़ के लिए हायर कर रहा है उसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेगा मोस्टली, बट इट डजेंट मीन कि आपने उस पर काम किया होगा. सो जस्ट गिव योर थॉट्स, पुट योर आंसर्स इन अ वे दैट
it shows that okay, you are technically good. Now let's move on to the next slide. Now the fifth step can be the scenario based questions. So he may give you some scenario, a problem statement, and he will ask you to write some answers on that or provide a solution. तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई सिनेरियो मिलेगा तो उसके बाद में आपको इंटरव्यूअर से 1 और 2 मिनट्स आप ले सकते हैं या 30 सेकेंड्स की. सो स्टेप बैक, आस्क फॉर सम टाइम एंड देन probably think about the system, think about the scenario, give your problem statement with all the thoughts collected. Okay, उसके बाद में आप पूरा concretely उस आंसर को उसके सामने प्रेजेंट करिए, एंड विच विल बी वेरी मच अप्रिसिएटेड बाय द इंटरव्यू, राइट. क्योंकि आपने कुछ टाइम लिया, आपने प्रॉपर सोचा उसके बारे में, आपने अपने थॉट्स को रिकलेक्ट किया और फिर आपने एक बहुत ही वैलिड आंसर दिया, बहुत ही कन्विंसिंग आंसर दिया, राइट. बिकॉज यू नीड टाइम टू थिंक अबाउट बिफोर कमिंग टू द सोल्यूशन, राइट. एंड वेन एवर यू फील लाइक कि आपको स्क्रीन शेयर करके समझाना है या फिर आपको कुछ स्केच करना है, तो फील फ्री टू डू इट with visual representations. The interviewer will be very much happy to see that you are making some diagrams or workflows or some functional diagrams. Okay, now make sure that you stay engaged throughout the interview, okay, which is very very important, and you answer all the questions confidently, because sometimes interviewer will try to shake your answers. He will say that are you sure, but when you are sure that okay, you are giving a valid answer, stick to it. Do not jump like okay, I am not sure, might be, maybe. Don't use these words. When you are clear, just say yeah, this is how it will work, and I am very clear that this is gonna work, right. Now moving on to the next slide. The next part will be your achievements. So you can highlight your certifications, whether you have done any Udemy certifications, your open source, whatever, right. So you make sure that you highlight your certifications, your learnings, whatever you have learned from the tutorials, from YouTube videos, LinkedIn learning, anything. Okay, now the next point is that highlight whatever you have done in your career apart from your day-to-day work. For example, in your previous organizations you may be mentoring someone, right. You may be mentoring graduates. आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप कुछ हैकाथॉन्स में पार्ट लिया है, आपने कुछ ऑर्गेनाइज करवाया है कंपनी लेवल पे, तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ों को हाईलाइट करें. ओके, एंड बी ऑनेस्ट इफ़ यू हैव नॉट वर्कड ऑन समथिंग. ओके, आप मिसलीड मत करना, आप मिसगाइड मत करना इंटरव्यूअर को कभी भी कि झूठ बोल के कि मैंने आई हैव वर्कड ऑन दिस, बट व्हेन ही आस्क्स क्वेश्चंस यू आर अनश्योर, राइट. दिस इज अ बिग नो इन द इंटरव्यू एंड यू विल बी रिजेक्टेड जस्ट फॉर दिस. नो मैटर इफ यू आर वेरी गुड or technically very strong in something, you will be rejected just because of this point that you are not honest. Now be a good listener and be proactive. Okay, this is also very much needed in the interviews. Also be smart psychologically. Try to read the interviewer's mind. This will come with practice, but जब आप 5, 6, 10, 20 इंटरव्यू दे लोगे, then you will acquire the skill कि आपको psychologically कैसे smart play करना है. So moving on to the next slide. Yes, the last step in the interview will be your mindset. Okay, so the interview or interviewer is looking for the right candidate, right attitude candidates, like someone who is having a positive attitude, who is willing to learn, but he is not as technically strong as someone who is having a bad attitude. तो इंटरव्यूअर जो है वो उसको प्रेफरेंस देगा जिसका एटीट्यूड सही है, बिकॉज टेक्नोलॉजी कैन बी लर्न बाय एनीवन हु इज़ विलिंग टू लर्न टेक्नोलॉजी, ही विल लर्न इट, राइट. बट आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए. नाउ बी फ्लेक्सिबल टू वर्क ऑन एनी अदर टेक्नोलॉजी व्हेन आस्क्ड इन एन इंटरव्यू. जब भी आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि हमारे प्रोजेक्ट में ये टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, आर यू विलिंग टू अपस्किल, आप उसमें यस आंसर करो कि हाँ मैं इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर लूँगा. आई एम वेरी फ्लेक्सिबल टू अडाप्ट एनी अदर टेक्नोलॉजी. देन एट लास्ट यू कैन आस्क अबाउट द कंपनी और द प्रोजेक्ट इन विच यू आर गोइंग टू वर्क और फॉर विच यू आर गिविंग द इंटरव्यू. उसके बारे में थोड़ा सा पूछ सकते हो आप इंटरव्यूअर से कि मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, क्या टीम साइज़ होगा, what will be the timings,
ये सब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो. दिस इज़ वेरी मच फाइन. डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग दिस क्वेश्चंस. एंड मे बी यू ऑल्सो आस्क अ क्विक फीडबैक एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है. दिस इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प यू नो इन गिविंग द फर्दर इंटरव्यूज़. ये आपको हेल्प ही करेगा कि मेरा एक पॉजिटिव फीडबैक लो इंटरव्यूअर से कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है. एंड मेक श्योर दैट यू बिहेव प्रोफेशनल वाइल अटेंडिंग इंटरव्यू. अगर आप घर से भी इंटरव्यू दे रहे हो, मेक श्योर दैट यू ड्रेस प्रॉपरली, राइट. यू आर पंक्चुअल, यू हैव ज्वाइंड द मीटिंग वेल बिफोर टाइम. आप टाइम से पहले पहुँच के मीटिंग अटेंड करो. ओके. नाउ दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड, लाइक टेल योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स. तो स्ट्रेंथ्स तो आप बता दोगे कि आई हैव अ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, मेरा कोडिंग अच्छा है, आई एम टेक्निकली वेरी स्ट्रांग, आई मिंगल वेल विद पीपल, मैं एक टीम प्लेयर हूँ. बट व्हेन ही आस्क्स अबाउट योर वीकनेस, आपको अपनी वीकनेसेस भी इस टाइप से बतानी है कि एट द एंड दे प्रूव आउट टू बी समवेयर रिलेटेड टू योर पॉजिटिव आउटकम्स ओनली, राइट. सो डू नॉट हाईलाइट योर नेगेटिव्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर वीकनेसेस. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. I think I have covered most of the things in this video, and if you follow these advices, these instructions, I am sure that you are gonna clear the interview and land in your dream job. So if you like my video, if you like the content, please do share, like and subscribe the channel. और आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस क्रिएट करने वाला हूँ, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस जो कि क्लाउड पे होंगे, आपके .NET पे, पाइथन पे, APIs पे. सो स्टे ट्यून्ड. हम बहुत सारा कूल कंटेंट एंड रियली क्वालिटी कंटेंट लाने वाले हैं बेस्ड ऑन प्योर एक्सपीरियंस जो मैंने एक्वायर किया है अभी तक वर्किंग ऑन दी IT. तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.